Hi, this is Sharad Kelkar, and you're watching Awesome TV. Mumbai is the city of dream, and when it comes to dreams, the city never disappoints. Yes, the proof is here. मैंने जो कोच थे हमेशा उनकी शिकायत वो उतना नहीं खेल रहा है जितना तुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं उनको कैसे बताता कि सर मेरा ध्यान वो गेम सीखने में नहीं, मेरा ध्यान आपकी तरफ है क्योंकि मेरा रोल आपका वाला है। हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। मैं हूँ पूजा नवाथे एंड इस वक्त मेरे साथ है सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर शरद केलकर। हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। Thank you, Pooja, and thank you, Awesome TV, for being here. Thank you so much. So they say, Mumbai is the city of dream, and when it comes to dreams, the city never disappoints. Yes, the proof is here. Yeah, it's completely correct because most of us who are working right now in this industry are from outside, and everyone came with a dream to be somewhere, and I think that's why we are sitting here on this podium and talking that we reached at least at certain level. So Mumbai never disappoints. Absolutely, and the story of slum girls. Yeah, the says- story is about dreams only. A boy from slums dreams of an impossible thing, which I think nobody can connect. A slum and a game like golf, which is, the richest Yeah. game, and it's a dream impossible. But this boy who dreams of it and then fulfills it and becomes a pro golfer. That's a story and a very inspirational story for everyone. When you were looking a dream of becoming an actor, did you ever think that it's going to be easy, or you're going to fulfill this biggest dream of your life? To be very honest, I never dreamt of being an actor. Okay. It's destiny. But yes, when I came to Mumbai and was thrown out of a show after 5 days of shoot because I never dreamt of being an actor. If I would have, I would have done better in that show. But after that, when the rejection came, I started dreaming about it, and then I started working on it, and then still working on it and achieving day by day whatever I am dreaming every day. What next? And the dreams are still continuing, and Mumbai is not disappointing me. क्या at बात all. है। वैसे जब हम slums की बात करते हैं, Asia's biggest slum, Yep. it's in Mumbai. Have you ever visited the slum Not areas? really, unfortunately not really, because I want to go and see how is the life inside. But I've heard so much, and I have gone to smaller slums, but I think they're full of life. What I feel, we are staying in flats and big houses. Still, we are shallow from inside. I think they're full of life in those slums, living घर their छोटा है lives. लेकिन दिल बड़े हैं उनके। Correct. They are living small houses, but the heart is big, and they are living their life to the fullest, I think. Whatever they are doing, they're happy. Their faces are happy. Absolutely. So I think there's something there which we don't have. मुझे ये भी लगता है कि स्लम एरियाज में अगर हम जाए, बहुत सारे आर्टिस्ट वहीं से मिलते हैं। हाँ, मतलब बहुत मिसाल talent बनाए हैं उन लोगों ने। मतलब अगर रैपर की बात करें हम, भी स्पोर्ट्स की हम, मतलब गोल्फ जैसा गेम जिसे एलीट कहते हैं, Correct. इट्स सरप्राइजिंग, और हर कॉर्नर में, हर कोने में वहाँ पर आर्टिस्ट है। Correct. बट कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स है कि उनको वो लिमिट हो जाता है कि एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो ये शो उसी के बारे में है कि आपको शॉर्ट टर्मिंग से डरना नहीं है लाइफ में। चाहे आप स्लम्स में हो, चाहे आप छोटे घरों में हो, चाहे आप बड़े घरों में हो, शॉर्ट कमिंग्स तो आएंगे ही आएंगे। आपको परेशानी आने वाली है, कहीं ना कहीं एक ब्रेक आएगा ही आएगा। हाउ यू क्रॉस दैट ब्रिज एंड मूव अहेड, ये कहानी उस चीज़ की है। तो पवन की लाइफ में इतने हर्डल्स हैं, पर्सनल इशूज हैं, स्लम्स के इशूज हैं, उसके गेम के बारे में इशूज हैं, उसकी साइकोलॉजिकल इशूज हैं। वो सारे हर्डल्स को कैसे पार करता है और कैसे अपना गोल अचीव करता है, स्लम गोल्फ उसके बारे में है। तो ये सिर्फ गोल्फ एक स्पोर्ट है जिसके माध्यम से कहानी चल रही है, बट जितने लोग ये शो देखेंगे जो कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए, सबके लिए बहुत कुछ सीखने को है इस शो के अंदर। और अगर आपको एक ऑडियो विजुअल अच्छी कहानी के माध्यम से मिले तो नथिंग बेटर देन दैट। And you're playing a coach. Now, wherever you've played any character, it has been a hard-hitting one. मतलब आपने लोगों के दिलों को छुआ है, especially with your performances, because it's very organic, it's very, it's realistic. और ये कोच का किरदार भी ऐसा होता है, you need to be very disciplined and all. As an actor, you are. बट ऐसे कौन से क्वालिटीज़ थे एज अ कोच जो आपने जिस पर आपको रिवर्क करना पड़ा? देखिए, मैंने पढ़ाई की जो अपनी, जो वो थी फिजिकल एजुकेशन में, तो वहाँ पर मोस्टली कोर्स के बाद क्या निकलते हैं, पीईटी, जो आपके टीचर्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स टीचर। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा बैक ऑफ द माइंड तो है ही, जो 3 साल जो पढ़ाई की है वो।
कि बीइंग अ टीचर हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ, वो तो एक था ही। प्लस मुझे याद है कि जब शो साइन हुआ और हमने प्रेप शुरू की उसके, तो हम सबको जितने एक्टर्स थे जो जो गोल्फ खेलने वाले थे या सिखाने वाले थे, उन सबकी ट्रेनिंग हुई। तो हमारे कोच आते थे और हमको रोज़ सुबह से पहुंचना पड़ता था, हम जाते थे सीखने के लिए गोल्फ कैसे खेलते हैं। मेरे जो कोच थे हमेशा उनकी शिकायत, वो उतना नहीं खेल रहा है जितना तुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो परफेक्शन आना चाहिए ना, वो शॉट में मारा है तूने, तो ड्राइव किया है तो मैं उनको कैसे बताता कि सर मेरा ध्यान वो गेम सीखने में नहीं, मेरा ध्यान आपकी तरफ है, क्योंकि मेरा रोल आपका वाला है। मुझे आप जो बातें कर रहे हो मेरे साथ में, आप जो किस्से सुना रहे हो, आप जो कंपैरिजन दे रहे हो, आप जो जिस तरीके से मुझे गेम खेलने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन वो खेलने के ऊपर। तो अब मैं उनको बताऊंगा जाके कि सर इसलिए मैं शायद तब अच्छा नहीं खेल रहा था या ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा था उधर कि मैं ये क्या कैसे कंडक्ट कर रहे हैं कैसे। तो इनफैक्ट द बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे ना पूरे शो के अंदर, तो वो आपको बड़ी अनयूजुअल सी लगेगी कि यार ये ऐसा क्यों दिख रहा है शरद खेलकर, ऐसा तो नहीं दिखता है यार, ये ऐसा अनकेप्ट क्यों है, ये ऐसा कहता पॉन्च भी दिखेगा आपको, ऐसा क्यों है ये। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैंने एक कैरेक्टर्स डिज़ाइन किया था उनको देख के कि यार ऐसी हैं वो, बट वो गेम में परफेक्ट है, वो कोचिंग में परफेक्ट है, वो एक फिजिकल जो अपीयरेंस है या जो ऐसा है उससे कुछ मतलब नहीं है। और वो डिफरेंशिएट भी करते नहीं होंगे क्योंकि वो कोच है। मुझे भी है कि मैं ऐसा ना हो कि इस शो में भी ऐसे दिख रहा हूँ, उस शो में भी ऐसे दिख रहा हूँ, मतलब क्या है फिर। बिल्कुल। एज एन एक्टर आपने क्या किया अपनी तरफ से, फिर एक रोल तो जो लिखा है आपको परफॉर्म करना है, बट एज एन एक्टर आपको कुछ ना कुछ तो एक अलग करना पड़ता है। तो उसमें मैं और मेरी टीम जो है, जो हमारा लोग डिज़ाइन करते हैं, हमने हमेशा ध्यान रखा है कि हम कुछ ना कुछ अलग। आप देखेंगे ना ऐसे बोलेंगे बड़ा हैगर्ड सा दिख रहा है कैसा, मुझे ही बोला सर ये फोटो क्या लगा दिया आपने, मैंने काफी अलग लग रहे हो आप लोग, बहुत अलग सी है कुछ टीवी फोटो, काफी ज्यादा अलग है। इससे पहले जितने किरदार तो निभाए बाकी उससे किरदार काफी अलग है, हटके इसलिए काफी हटके। बट ऑल्सो वहाँ पर जो माहौल होता है को एज अ कोच यू नो वो लोग टैलेंट देखते हैं। ये कितना आपने ऑब्जर्व किया कि सचमुच, क्योंकि वहाँ पर रिच लोग ही गोल्फ गेम इज सेड टू बी, बट जब पवन जैसे लोग यू नो इतने टैलेंटेड होते हैं और वो खेलने आते हैं, तब एज अ कोच उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है? देखिए मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि कई स्पोर्ट्स में कई जगह मैनिपुलेटिव लोग भी होते हैं, बट इस शो में नहीं है ऐसा। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन कोच और बहुत पैशनेट है अपने आर्ट को लेके, अपनी कोचिंग को लेके, एंड ही वांट टू प्रोड्यूस गुड गोल्फर्स। उसका चाहे फिर आप अमीर हो, चाहे वो आप गरीब हो, चाहे वो आप, और वो अगर कोई दूसरा तीसरा एक कोई प्लेयर है जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करने से भी रुकता नहीं है कि नहीं यार वो वैसा खेलता है। इफ़ यू वांट टू बी बेटर देन हिम देन यू हैव टू अचीव दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड। तो वो बड़ा एक अपने प्रोफेशन को लेके बड़ा ईमानदार है और बड़ा उसको एक रिस्पेक्ट भी उस स्पोर्ट के लिए कि नहीं यार ये अगर मैं सिखाऊंगा तो मेरे तरीके से सिखाऊंगा और आप फॉलो हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई बच्चा हो। क्या बात है। एंड लास्टली हमारे ऑसम टीवी के दर्शकों से प्लीज बताइए क्यों देखनी चाहिए ऑसम टीवी के दर्शकों, मैं हूं शरद केलकर और स्लम गोल्फ ये सीरीज़ आ रही है अमेजॉन मिनी टीवी पे, जो आपके अमेजॉन शॉपिंग ऐप पे बिल्कुल फ्री है। ये एक बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है, एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाने की कहानी है, एक स्लम के लड़के की अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की कहानी है। तो ये कहानी शायद आपके लिए भी उतनी ही रिलेटेबल हो जितनी पवन के लिए है। तो ज़रूर देखिएगा स्लम गोल्फ 22 तारीख से अमेजॉन मिनी टीवी पे, आपके अमेजॉन शॉपिंग ऐप पे फ्री है और अमेजॉन प्राइम पे भी है।